اور ہمارے سامنے بلوچستان حکومت کی جانب سے افسوس کی بات ہے، بلوچستان حکومت جو ایک ہفتہ پہلے مذاکرات کی ڈونگ پر ایک عورت کو یہاں بیچتی ہے قرآن کے نام پر، وہ چاہتے تھے کہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن مسئلے کا حل یہ ہے کہ گروہ کو یہاں بٹھایا گیا ہے جن میں بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جو ڈیتھ اسکواڈ کے میں شامل ہے، وہی ڈیتھ اسکواڈ جو بلوچستان میں جبری گمشدگی اور قتل و غارت میں ملوث ہے، اسی ڈیتھ اسکواڈ کے ختم کرنے کا مطالبہ ہمارا مین مطالبہ ہے، لیکن ان کو ہمارے سامنے بٹھایا گیا ہے۔ تو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اس کا میں خیر مقدم کرتی ہوں، مگر ان سب سے میں یہی کہتی ہوں کہ اس فیصلے پر عمل کریں، اور یہ لوگ جو ہمارے سامنے بٹھائے گئے ہیں ان کے اس پر ہماری حفاظت کرے، کیونکہ ہمیں یہاں پہ سٹارٹ سے شروع دن سے پرامن احتجاجی تحریک کو وائلنس کی طرف لے جانے کی ایک سازش کی گئی ہے، جس میں بلوچستان حکومت اور اسٹیٹ کے تمام ادارے شامل ہیں۔ ہم بارہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا مطالبہ آئینی ہے، انسانی ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان ایک جنگ زدہ خطہ ہے، اسی وجہ سے ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یو این او کا انویسٹیگیشن جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے وہ بالکل ویلڈ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہونے والے جتنا وائلنس ہے، جتنا انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہے، اس پر تھرڈ پارٹی انوالو ہو، وہ انویسٹیگیشن کرے کہ بلوچستان میں کیا قتل و غارت کی ہوئی ہے، کیونکہ 75 سالوں سے پاکستان یہی بیانیہ لایا ہے کہ بلوچستان میں امن قائم ہے، بلوچستان ایک بہت پرامن علاقہ ہے، لیکن امن کا اندازہ آپ یہاں لگا سکتے ہیں کہ 45 دنوں سے ایک تحریک جاری ہے، اس کے جینون مطالبات کو پورا کرنے کے بجائے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو سبوتاش کرنے کے لیے ہر دن ایک نئے سازش کی تحت ایک نیا سازش رچا جاتا ہے، اور اب اس کیمپ میں موجود عورت، خواتین، بچے جتنے بھی ہیں ان سب کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ میں سپریم کورٹ اور جس نے ہماری یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ہماری سیکیورٹی کو یقین دہانی کرے گی، ان سب سے پھر سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ پرامن احتجاجی تحریک ہے، آپ اگر ہمارے مطالبات کو سننے کا اختیار نہیں رکھتے تو کم سے کم ہمیں پرامن طریقے سے احتجاج کرنے کا تو حق دے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ اور کیا بیانیہ لے کر آئے ہیں جو دوسرے لوگ، یہ کون لوگ ہیں، آپ انہیں کتنا جانتے ہیں، اور آپ نے کہا ان میں ڈیتھ اسکواڈ کے لوگ بھی ہیں، جی یہ کون لوگ ہیں، ان کی تنظیم کا نام کیا ہے اور یہ چاہتے کیا ہے؟ دیکھیں، میں ان کے بارے میں زیادہ یہ کہوں گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شاید ان کو بھیجا گیا ہے ریاست کی جانب سے، اور اگر یہ انصاف چاہتے ہیں تو یہ بھی ریاست سے انصاف چاہے، ہمیں ان سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ وائلنس ان کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے احتجاج کو سبوتاش کیا جائے، عورتیں اور بچے بیٹے ان کو ہراساں کیا جائے، ہمیں ایک سیج میں رکھا گیا ہے، اور اس سیج کی ذمہ دار جو ہے نا بلوچستان حکومت ہے، یہ ریاست ہے جو اس پرامن احتجاج کو ختم کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایک عرصے سے اسی لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جو بلوچستان میں جاری نسل کشی کو جسٹیفائی کر سکے، دہشت گردی کا نام دے کر اس کو جسٹیفائی کر سکے۔ ہم بارہ کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان میں جو مسئلہ چل رہا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اس پر معصوم لوگوں کا قتل عام بالکل جائز نہیں ہے، معصوم لوگوں کی قتل عام کو جسٹیفائی نہیں کیا جائے، اور جبری گمشدگی جیسے غیر انسانی عمل، ایکسٹرا جوڈیشل جیسے غیر انسانی عمل کو بالکل بھی جسٹیفائی نہ کیا جائے، مگر ان مطالبات کو حل کرنے کے بجائے ان کو ختم کرنے کے لیے ایک ریاستی بیانیہ، وہ ریاستی بیانیہ جہاں بلوچستان میں ہونے والے ہر قتل و غارت کو کسی بیرون ملک کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، اس کو لایا جا رہا ہے۔ اچھا، ہماری کوشش ہے کہ ہم وہاں پہ جو لوگ ابھی آئے ہیں ان سے بھی بات کریں، آپ کے ذہن میں ان کے لیے کوئی سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہتی ہیں ان سے؟ کیا پوچھیں؟ میں ان سے یہی سوال کرتی ہوں کہ ہمارے سامنے آپ نے کیمپ کیوں لگایا ہے؟ بلوچستان میں ہونے والے ہم قتل و غارت کے ہر قتل و غارت کے خلاف ہے، اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ ریاست سے انصاف مانگے، کیونکہ بلوچستان میں جو وائلنس ہے اس کی ذمہ دار ایٹ دا فرسٹ پلیس وہی اسٹیٹ ہے، اسی کو ہی امن قائم کرنا چاہیے، امن کے بجائے اس نے بلوچستان میں صرف اور صرف قتل و غارت کی ہے، اور یہاں پہ ان ماؤں اور ان بچوں، یہ بچے یہاں پہ درجن بھر بچے یہاں گھوم رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان کی حالت پر ترس کھائے، اور جو ایک جبرانہ نظام جہاں ایک تفریق بنائی گئی ہے، اس تفریق سے نکل کر بلوچستان میں ہونے والے قتل و غارت کے خلاف یکجا ہو کر ہماری آواز بنے۔ شکریہ۔ آپ کے خیال میں ان کے کیا مطالبے، یہ چاہتے کیا ہیں، آپ کو کیا سمجھ آئے؟ میرے خیال سے ان کا مطالبہ بنیادی طور پر ریاست سے ہونا چاہیے، لیکن یہ صرف اور صرف یہاں آ کر ہمارے پرامن احتجاج کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ہراساں کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں، کہ میں کہہ چکی ہوں کہ یہ احتجاج جو ہے نا صرف یہاں 150 کے قریب خاندان نہیں ہے، بلکہ پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے۔ آج بلوچستان میں کوئٹہ، کراچی، ہر جگہ احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ آپ اس طرح یہ جو لوگ ان کو بیچ رہے ہیں، جو حکومتیں ان کو بیچ رہے ہیں، میں ان سب کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کر کے آپ اس مسئلے کو اور غلط کر لے جائیں گے۔ فرید رحسانی صاحب، آپ کی فیملی میں کون شہید ہوا ہے، تھوڑا سا تفصیل بتائیں گے؟ میرے فیملی میں میرے ماموں کے بیٹے، میرے چچا کے بیٹے، میرے بھائی شہید سراج رحسانی میرے چچا زاد بھائی تھے، اور ہمارے فیملی کے اپنے جو ہے رحسانی قبیلے کے کم از کم 48 بندے ایک دھماکے میں شہید ہوئے ہیں سر۔ اچھا، یہ کون سا سال کا واقعہ ہے؟ یہ نوابزاد سراج رحسانی پر جو درنگڑ میں ہوا تھا 2018 میں۔ اچھا جی جی۔
तो उनकी तहकीकात का क्या हुआ उनके? देखिए हम तो इसीलिए आए हैं कि यहाँ तो दहशतगर्दों के लिए तो जुडिशल कमीशन बनता है, और यहाँ पर जो लोग शहीद हो रहे हैं रियासत के लिए, रियासत के नाम पर, उनके लिए जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनता है? इसीलिए हम आए हैं कि हमें भी तो इंसाफ दो ना। हमारे तो कातिल देखे, हमें जो मार रहे हैं वो फिर मान भी रहे हैं, वो इंडियंस नंबरों से, अफगानिस्तान से, ईरान से, वो क्लेम कर रहे हैं कि BLF दैश हम इनको शहीद कर रहे हैं। हमें किस लिए शहीद किया जा रहा है? देखिए इसीलिए हम आए हैं कि भाई हमें भी तो इंसाफ दो ना। तो आप ये जो वाक़यात के जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इसके ऊपर जो बलूचिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे हैं, जो फोर्सेस हैं, उन्होंने अभी तक क्या किया है? देखो हमने तो उनको बता रहे हैं, हम अभी भी आए हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चले कि ताकि हम भी शहीद हो रहे हैं, आपके अपने बंदे शहीद हो रहे हैं। अभी रिसेंटली तुर्बत में 9 मजदूरों को शहीद किया गया। इसके लिए क्यों हम चीफ जस्टिस साहब को कहना चाहते हैं कि क्या तुर्बत के वो 9 मजदूर आपके नज़रों में नहीं आ रहे हैं जिनको शहीद किया गया और BLF ने मान लिया है? चीफ जस्टिस ने भी तो हुकूमत को कहना होता है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है नाकाम है, बलूचिस्तान में हुकूमत नाकाम है, रियासती इदारे नाकाम हैं, तो आप रियासती इदारों का एहतसाब कर रहे हैं? ना रियासती इदारों को नाकाम कहना चाहता हूँ, ना हुकूमत को नाकाम कहना चाहता हूँ। हम उनको जगाना चाहते हैं। किन को जगाना चाह रहे हैं आप हुकूमत को जगाना चाहते हैं। हुकूमत किन की है? हुकूमत अब जिनकी है। आप हुकूमत में है ना, आप लोग खुद बलूचिस्तान में, हुकूमत में नहीं। आपके जो कबीले हैं वो कोई हुकूमत में नहीं आप क्या अपोजिशन में रहे हैं क्या? आप देखिए पॉलिटिक्स नहीं करते आप? मैं आपको बता दूं, अगर आप हुकूमत की बात कहते हैं तो गवर्नर बलूचिस्तान वहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ पर तो गवर्नर साहब नहीं है। आपके जितने हुकूमती बड़े ओहदेदार हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर तो कोई नहीं आया। तो ये बताएं, आप किसको वोट देते हैं इलेक्शन में? मैं किसी को और नहीं देता हूँ। इलेक्शन में आप हिस्सा ही नहीं लेते हैं? इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। कबीला जो है जी, आपका, वो पीपल्स पार्टी को हम लोग वोट देते हैं। पीपल पार्टी को वोट देते हैं। तो आपने कभी पीपल पार्टी से पूछा कि क्यों ये कत्ल में हो? तो मैं पूछ लूँ उससे ना। नहीं तो बलूचिस्तान में कितनी बार वो हुकूमत में अभी ये जो 2012-13 से ये सिलसिला शुरू हुआ है। अच्छा। हाँ, अगर इस दौर में पीपल्स पार्टी हुकूमत में 2018 में अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में था, मैं जरदारी साहब से पूछता कि आपने क्या किया। आपने आज तक जरदारी साहब से नहीं पूछा ये क्या हो रहा है बलूचिस्तान में? वो आपके लीडर नहीं है? जरदारी साहब के अपने बीवी को इसी इस्लामाबाद में शहीद किया गया, उसके लिए क्या हुआ? तो फिर वोट किस लिए देते हैं अगर वो इतने बेबस हैं? तो क्यों उनको हुकूमत में बार बार? देखिए इधर वोट की बात नहीं है, इधर सियासत की बात नहीं है, इधर मेरे शहीदों की खून की बात है। खून की बात है। फिर मैं चीफ जस्टिस, फिर वो वोट नहीं देते BNP को, फिर वो क्यों आकर इधर बैठे हुए हैं? क्योंकि आपका उनसे क्या मुकाबला है? देखिए इसीलिए तो उनको, वो अभी हमें गालियां दे रहे हैं, यहाँ आके गालियां दे के जा रहे हैं। हम क्यों मुकाबला? ये तो ऐसी कोई वाकया नहीं हुआ, ना ही किसी ने अभी रिपोर्ट किया, ना कोई मैं देखा आपको है। दिखा दूंगा। मैं आपको दिखा एक चीज, मेरी बात जरा समझने, वो औरतें और बच्चे हैं बैठे हुए हैं, उनके लोग लापता हैं, उनको ये भी नहीं पता। आपको तो ये तो पता है ना कि आपके लोग शहीद हुए हैं, उनको तो ये भी नहीं पता वो उनके बंदे गए किधर हैं। तो दोनों में से कौन बेहतर सूरत हाल में है? एक चीज, वहाँ पर एक ऐसी औरत बैठी हुई है जिसकी अला नजर के साथ तस्वीरें हैं, फिर मैं क्या आप देखें, इस तरह की बातें मत करें। क्यों नहीं करूं? आप एक लेवल रखें अपना। आप शहीदों की फैमिली के हैं, पूरा पाकिस्तान आपका एहतराम करता है। आप जो है ना इस लेवल पे मत आए। आप सिर्फ ये बताएं कि जो आपके लोग शहीद हुए हैं, आप जानते हैं वो शहीद हुए हैं, दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुए हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। तो जिन लोगों के घर वाले लापता हैं, तो कौन बेहतर? आपको ये तो पता है उसकी कब्र किधर है, उनको तो ये भी नहीं पता उनकी कब्र किधर है, उनके घर वालों की। आपको पता है कि हमारे भी कुछ अभी 8 से 10 दिन पहले 2 बंदों को उठाया गया बोलान से, आसमानी मरी वगैरह को। उनको जो है बलोची अदालत में वहाँ पे दहशतगर्दों ने अदालत लगाकर उनको शहीद कर दिया गया। उनके लिए हम आए हैं। आपके सिक्योरिटी के इदारे नाकाम है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम है, आपने कभी गिला किया उनके बारे में? देखिए ये तो वार जंग चल रहा है, बलूचिस्तान जो है इस टाइम वार जंग में है। जंग में तो लोग शहीद भी होते हैं, फिर आप किस लिए इधर बैठे? फिर हम अपने हम जंग, अगर आपको किससे गिला है कि कौन नाकाम हुआ है? हुकूमत नाकाम है, रियासती इदारे नाकाम है, एजेंसियां नाकाम है। हम सिर्फ चीफ जस्टिस साहब से ये कहना चाहते हैं कि आपने दहशतगर्दों के लिए जो जुडिशल कमीशन बनाया है, वो शहीद के वर्षा के लिए भी जुडिशल कमीशन भी हुकूमत के लोग ही होंगे ना। चीफ जस्टिस का कोई फौज तो नहीं है। तो हम चीफ जस्टिस को आप वोट देते हैं? चीफ जस्टिस तो फिर चीफ जस्टिस साहब अगर उनके लिए बना सकते हैं, हमारे लिए बनाए। तो आप बस आपका मुकाबला इन औरतों सबके लिए, आपका मुकाबला इन औरतों बच्चों से है? नहीं, मेरे साथ भी कैंप में बैठे, मेरे साथ भी औरतें बच्चे बैठे हुए हैं। ये बच्चे नहीं, अच्छी बात है ना। मैं कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ ना, लेकिन आप इल्जाम किसको दे रहे हैं? मैं आपको बताऊँ, आपको चाहिए कि हुकूमत से कहें कि अगर ये कोई दहशतगर्द है तो इनको पकड़ें, इनको अवाम के सामने। उनको गायब कौन कर रहा है? उनको गायब कौन कर रहा है? जो ओरिजिनल मिसिंग पर्सन है, देखो जो ओरिजिनल मिसिंग पर्सन है, मिसिंग पर्सन में अभी मैं आपको बता दूं, जो आपके ग्वादर PC पे हमला हुआ,
वो जो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में थे जिनके नाम, वो तो पीसी में दहशत मुझे बताएं, ये जो लापता लोग हो रहे हैं इनको सामने लाना चाहिए जी, लाना इनको अदालतों में लाना चाहिए इनको सजाएं मिलनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आप मैं से पूछ रहा हूं, क्या इन लोगों को पकड़ के सजा मिलनी चाहिए जो बिल्कुल तो ये जो गायब हुए हुए हैं, हो सकता है इनमें से खुद कुछ छुप जाते हो और वो कहते हो कि हम उठा लिए गए, तो आपके ख्याल में ये किसकी जिम्मेदारी है, इनको ढूंढना किसकी जिम्मेदारी है? मैं आपको बता दूं, इसीलिए मिसिंग पर्सन के मसले पे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो गया। जब मिसिंग पर्सन के लोग दहशतगर्दी में मारे जा रहे हैं, आपको क्या पता वो दहशतगर्दी नाम है उनका नाम था, फिर वो उनको वो हम लोग बलूचिस्तान के लोग हैं। आपके ख्याल में बड़ी तादाद में लोग ऐसे नहीं है जो घरों से उठाए गए और बाद में उनकी लाशें मिली? ऐसे लोग नहीं है कोई भी? कैसे? आप तो वहाँ के रहने वाले, आपको नहीं पता कि लोग गायब होते हैं, लापता किए जाते हैं, अगवा होते हैं? आपको पता है इस बात? हमें क्या पता कि किसको लापता किया जा रहा है, किसको अगवा किया? आप कह रहे हैं ना वो दहशतगर्द हैं, आपको ये तो पता है? मैं अपना बात करूंगा, जब मेरे लोगों को शहीद किया जा रहा है तो वही दहशतगर्द तंजीमें उनको मान रहे हैं, तो हम कहते हैं उन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ आप एक्शन लें। तो आप ये कहें ना कि दूसरी हमारे बात इदारों को उनको पकड़ना चाहिए। बात ये है कि हमें इंसानी इखलाकी जुर्रत ये है कि हम लोग मिसिंग पर्सन की भी मजम्मत करते हैं, लेकिन उनको भी चाहिए कि मिसिंग पर्सन की या लोगों को गायब करने वालों की? मिसिंग पर्सन की मजम्मत करते हैं, जो लोगों को missing गायब person की करते हैं मैं मजम्मत उनको भी मजम्मत करता हूँ, लेकिन उनको भी चाहिए कि वो भी BLA की, BRA की उनकी मजम्मत करें। खानदान वाले लोग लापता हुए हैं, शहीद हुए हैं, तो इनके भी खानदान वाले ये कहते हैं ये भी शहीद हुए हैं। देखिए मुझे उस पर भी अफसोस है, उसको भी इंसाफ रियासत दे सकती है। हम खुद मजलूम हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम तो खुद इंसाफ के लिए निकले, हम तो खुद कत्लो गारत के खिलाफ निकले, हम तो हर तरह के वायलेंस के खिलाफ है, हर तरह के कत्लो गारत के खिलाफ हम शुरू दिन से कह चुके हैं। लेकिन जो बलूचिस्तान में कत्लो गारत हुई है उसकी जिम्मेदार सबसे पहले रियासत है। आप उनसे जाकर इंसाफ मांगे। ईद का दिन हो, हर कोई तैयारी करता है, अपने बच्चों की तैयारी करता है, बेटे अपने बच्चों से मिलते हैं, लेकिन हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। हम ईद के दिन भी प्रेस क्लब के सामने जाते हैं कि शायद हमारे प्यारों की कोई खबर मिल सके। हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है, 12 साल हो चुके हैं। हमारी ज़िंदगी सिर्फ ये है कि हम प्रेस क्लब के सामने जाते हैं, मुख्तलिफ धरनों में जाते हैं ताकि अपने प्यारों की बाजियाबी हो सके। मेरे बेटों की पढ़ाई नामुकम्मल हो चुकी है। मेरे बेटे अभी पढ़ नहीं रहे क्योंकि उनके वालिद साहब जो कि उनके सरपरस्त थे, उनका साया इस वक्त उनके सरों के ऊपर नहीं है। मुझे ये बताएं कि जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं या जो पुलिस है बलूचिस्तान में, क्या वो नाकाम है? नहीं है, नाकाम नहीं है। तो फिर आप चीफ जस्टिस से क्या गिला कर रहे हैं कि वो क्या करे? कमीशन बना देंगे, क्या हो, आप मुतमईन हो जाएंगे? हाँ, मुतमईन हो जाएंगे हम लोग। अच्छा, आप इससे ये जो बलोच यकजहती कौंसिल है, आप इसके मुकाबले में यहाँ एहतजाज कर रहे हैं? आपका कोई उससे नहीं, उससे कोई काम नहीं है मेरा। अच्छा, उससे कोई ताल्लुक नहीं है? हालांकि ना ही आपको इन औरतों और बच्चों से कोई इख्तिलाफ? कोई नहीं। उस टाइम जब मेरे अब्बू को लापता किया गया था, उस वक्त तो मैं बहुत छोटी थी। मेरी अब्बू के साथ ऐसी मेमोरीज नहीं है कि मैं याद कर सकूं। यहाँ रहती मैं इसको 2 दिन से कह रही हूँ, मुझे सिर्फ उससे मिला के। मेरा भाई बहुत छोटा था, मेरे भाई ने तो सिर्फ अपने अब्बू को तस्वीरों में देखा है। हम बाप के साए से महरूम हैं, हमें नहीं पता कि बाप को लापता कैसे होता है। इंशाल्लाह तू हिम्मत नहीं हार मत, बहुत दुआएं तेरे साथ हम जैसे बुड्ढों की। मैडम, आप अपना कुछ बात करना चाहेंगी इनके हवाले से? अपना तारफ करा दें। आई एम फ्रॉम कराची एंड आई हैव बीन इन एजुकेशन ऑल माई लाइफ, और मुझे हमेशा ये लगता था कि हमारी बच्चियां अगर खड़ी होंगी तो ये मुल्क चेंज होगा। एंड महरंग इज़ द एपिटोम ऑफ दैट स्पिरिट कि ये बच्ची आज खड़ी है तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क की आई सी डिफरेंस इन आवर कंट्री कि बच्चियां बोलने लगेंगी तो हमें पता चलेगा। और ये दुखी बोल रहे हैं, इनके साथ जो जुल्म हुआ है वो बहुत जुल्म हुआ है। और अगर हम मतलब मेरी उम्र तो ऐसी बेटा, मैं इनके साथ ज़मीन पे नहीं बैठ सकती हूँ, सो दुआ कर सकती हूँ। आई रियली आई एम प्रेइंग फॉर हर, शी इज़ माई हीरो।
اور اللہ ان کو ہمت دے اور یہ کھڑی ہوئیں اور یہ کریں. میرا بچہ, I love you. دیکھیے یہ ایک لائیو سیشن ہے جس میں ہم فیملیز کو بٹھاتے ہیں, ان کے جذبات, کہ وہ لوگ جو گمشدہ ہوئے ان کو کوئی دہشت گرد کہتا ہے, کوئی کچھ بھی کہتا ہے, لیکن ان کے بیٹے تھے, وہ بیویاں ہمارے پاس موجود ہے جو 15 سال سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہے ہیں. ہم ریاست کو اور ان لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ 50,000 لوگوں کو نہیں بلکہ آپ نے 50,000 سے زائد خاندانوں کو بے بس کیا ہوا ہے. اور یہ وہ آئے ہیں, وہ سسکیاں ہیں جو کوئی نہیں سننا چاہتا, جس کا علم کسی کو نہیں ہے. دن بدن ان خاندانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی صبح سے رات صرف آؤں اور اسکیوں سے ہوتی ہے. وہ روتے ہیں, ان دنوں کو یاد کرتے جب وہ اپنے پیاروں کے ساتھ ہیں, اور اب وہ نہیں ہے, اور اب ان کو یہ ڈر ہے کہ شاید ان کے پیارے بھی لاش کی صورت ان کو لوٹا دیے جائیں گے.